morning students, welcome to computer class. Today we will start our chapter 3 problem solving techniques. In this chapter we will learn about algorithm, flowchart, conditional statements and loop. So let us start our chapter. We know that computer languages are used by computer to create programs or to solve user problems. कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज करके यूजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. सो प्रोग्रामिंग के लिए या प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, यानी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम राइट करते हैं जिनका यूज करके प्रोग्रामिंग की जाती है. और इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या रिटर्न इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं एल्गोरिथम. सो एल्गोरिथम्स is the step by step instructions written in a simple language. एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल एनी बॉय सैम wants to drink a cup of tea. So which steps he has to follow to make the cup of tea? Step 1 क्या हो सकता है सैम के लिए? He takes an empty pan and pour water into it. Second step could be he puts the pan on the gas burner. Third step will be he put tea leaves and sugar in it. Next step will be he let it boil. And next step will be he add milk into it. And then he boil it again. And next step will be he strain it into a cup. And next step will be it's taken ready. So these are some steps he will follow to make a cup of tea. So this type of steps we will write for our problem in any simple language is known as algorithm. कुछ रूल्स हैं एल्गोरिथम को राइट करने के लिए. क्या क्या रूल हो सकते हैं? आपको स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से स्टेप्स लिखने चाहिए. सेकेंड रूल कुड बी राइट ईच स्टेटमेंट क्लियरली इन सेपरेट लाइन. हर एक स्टेटमेंट को सेपरेट लाइन में क्लियरली लिखना चाहिए. ऑलवेज बिगिन विद स्टार्ट एंड फिनिश विद स्टॉप. स्टार्ट से बिगिन करना है एंड स्टॉप पे फिनिश करना है. सो लेट अस सी हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम. इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, तो कैसे आप राइट करेंगे एल्गोरिथम? एल्गोरिथम फॉर एडिंग टू नंबर्स. स्टेप 1 विल बी स्टार्ट. सेकेंड स्टेप विल बी इनपुट A and B. Input A and B. We will give input A and B two numbers to the computer. Step 3 will be sum equal to A plus B. ये हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में स्टेप्स लिख रहे हैं to do addition of two numbers. Step 3 will be sum equal to A plus B. Step 4 will be print sum. And next step will be stop. So in this first step will be start, second step will be input to A and B. Two numbers will be added to the computer, given to the computer. Step 3 will be add this number and store the result in sum. नेक्स्ट स्टेप विल बी प्रिंट सम. सम को प्रिंट करवाएंगे यानी कि जो रिजल्ट आया उसको. एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टॉप. सो दिस इज द वे टू राइटिंग एल्गोरिथम फॉर प्रोग्राम्स. सो ऑन पेज नंबर 25 here are some examples for writing algorithm. You have to read the examples and these are very simple. You can easily understand what an algorithm is and how to write algorithm in computer system. So, for example, to find square of a number. अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट. देन रीड n1. n1 कुड बी एनी नंबर, कोई भी नंबर जो कि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? s इक्वल टू n1 इंटू n1 मीन्स s के अंदर स्टोर किया गया रिजल्ट स्क्वायर का. उस नंबर को उसी नंबर से दोबारा अगेन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्क्वायर. तो n1 इंटू n1 इज इक्वल टू सम s. देन प्रिंट s. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? s को प्रिंट करवाएंगे विच इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर. एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप. So
on next page, let us do think and answer. Write algorithm to find area of a square. Algorithm to find area of a square. तो स्टेप 1 होगा स्टार्ट. स्टेप 2 हो सकता है रीड. S is the side of the square. Step 3 will be area equal to S into S. Area of square is side into side. Step 4 will be print area. Side into side, and the result will be stored in area. So print area. We will print the area. And step 5 is stop. So this is the way of writing algorithm for finding out area of square. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एल्गोरिथम टू प्रिंट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट एरिया टू प्रिंट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज गिवन 3. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप तो आप लेंगे स्टार्ट. सेकंड स्टेप लेंगे रेडियस इज इक्वल टू 3. रेडियस इक्वल टू 3 आपने एंटर कराया. नेक्स्ट स्टेप लेंगे CIR. CIR इज सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई r. 2 पाई r, पाई की वैल्यू होती है 3.14 into r means radius. Then print circum, print CIR. Next step होगा print CIR and then stop. So to write the algorithm for finding the circumference, start then radius equal to 3. Circle CIR stands for circumference. तो कैसे निकालेंगे circumference? 2 pi r. 2 into pi 3.14 into r. r की जगह रेडियस लेके और इसकी वैल्यू 3 अपने आप लेगा. नेक्स्ट स्टेप होगी प्रिंट CIR एंड देन स्टॉप. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट. एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखते हैं इन सिंपल लैंग्वेज. फ्लो चार्ट में भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, पर इसमें हम ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं. इसमें कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट या स्टॉप के लिए हम सर्कल या ओवल बनाएंगे. फॉर इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे. ठीक है. प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे एंड डिसीजन के लिए डायमंड शेप बॉक्स बनाएंगे. सो दिस there is a table given for symbols used in flow chart. फ्लो लाइंस के लिए हम एरो लाइंस का यूज करेंगे. फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग के लिए एरो लाइंस का यूज करेंगे. कनेक्टर्स का यूज करते हैं, यानी कि एल्गोरिथम के या फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स का यूज करते हैं. ये हमेशा पेयर्स में ही यूज किए जाते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू ऐड 3 नंबर्स. See on page number 27, here is a program for here is a flow chart to add 3 numbers. Start, then read n1, read n2, read n3. 3 parallelograms are drawn. In the first parallelogram, it will take input number n1 and read n2 number in second and read n3 number in third. In the fourth box, there is a rectangle which is processing box. रेक्टेंगल क्या होता है? प्रोसेसिंग बॉक्स. यहाँ पे सम कर लिया गया. SUM सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी इन तीनों नंबर्स का सम जो है SUM सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया. नेक्स्ट प्रिंट सम. इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होता है? पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है. प्रिंट सम एंड देन स्टॉप. सो दिस इज द वे of writing flow chart, of creating flow chart.
It is very simple. Come on the next page. Here is a flow chart to print area of circle. To print area of circle, the flow chart will be start and stop are written in ovals. Next step will be input and output are written in parallelogram. Input are एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस या आर. आर की वैल्यू हमें यूजर से लेंगे, इनपुट आर. देन प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल का यूज करेंगे. एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर. पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर इंटू आर. कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, एस स्टार. नेक्स्ट स्टेप आउटपुट के लिए अगेन क्या लेंगे, पैरेललोग्राम. प्रिंट एरिया and then stop. Again we use oval for the stop. So this is the flow chart of writing area of circle, for calculating area of circle. Next topic is conditional problem solving. In some problems we have to face some conditions. यानी conditions जहाँ पे यूज होती हैं, जैसे कि if a is greater than b, अगर ये a बड़ा है b से, then print a is big, a is bigger than b. अगर नहीं, no, then आप लिख सकते हैं a is smaller than b. तो इस तरह की अगर कंडीशंस होती हैं कुछ प्रोग्राम्स में, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, diamond box is used for the condition. Here the question will be if it is true, if it is yes, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉलो होंगी. अगर नो, तो जो इस तरफ स्टेटमेंट्स हैं वो फॉलो होंगी. फॉर example is given on page number 29. Start, then input a and b. If a is smaller than b, फिर चेक करेगा is a is smaller than b. अगर yes तो print a is smaller. अगर no तो print b is smaller. Then stop. So this is the way of writing conditional statements. इसी तरह से फिर loops. कंडीशनल्स अगर स्टेटमेंट्स जब फॉलो होती हैं जब आप एक ही बार सिर्फ लिखना चाहते हैं, एक ही बार कोई चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप सेम चीज़ को या कुछ नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं अगेन एंड अगेन. तो अगेन एंड अगेन या किसी प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है लूप्स. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, इनपुट नेम, प्रिंट नेम, स्टॉप. तो ये क्या है, अगर आप वंस या एक ही बार अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं. लेकिन आप अपने नाम को 100 टाइम्स अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए रिपीटेड प्रोसेस यूज करेंगे या लूप्स का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्ट, प्रिंट नेम, इनपुट नेम, देन काउंट इक्वल टू 1. 1 से स्टार्ट किया हमने, काउंट में अगेन प्लस कर दिया 1, यानी कि काउंट की जो भी वैल्यू रही होगी अगले स्टेप में एक बढ़ जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा. इसके बाद चेक करेंगे काउंट को, अगर ये लेस देन इक्वल टू 100 है, अगर है तो प्रिंट कर देंगे नेम को. लेस देन इक्वल टू 100 यानी 100 तक ये चलेगा, नेम प्रिंट होता जाएगा. जब ये लेस देन इक्वल टू 100 नहीं रहेगा, 1 से 100 तक की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 100 से बढ़ गई है, 100 से ज़्यादा हो गई, 101 हो गई, तुरंत ये क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. इसके बाद है थिंक एंड आंसर. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जर नंबर बिटवीन टू नंबर्स. सो ये आपको खुद ट्राई करना है. इसका एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल पेज नंबर 29 पे गिवन है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स a एंड b. तो ये मैं आपको करवा देती हूँ. इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है.
सम, नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिंट सम एंड देन stop. So this is the flow chart to add two numbers. So students, we have completed our chapter. If you have any doubt, you will ask in our next class. So read the chapter again thoroughly. Thank you. Have a nice day.